Hello, good morning, all. Welcome to this e lecture on the topic bioinorganic chemistry. So, in the past lecture, we went through metal porphyrins. That is one of the most important ways in which metal ions are involved in complexes with a type of macrocyclic ligands called porphyrins. And you saw that few most metalloporphyrins include heme and chlorophyll, and as you know that heme is the important constant of hemoglobin and myoglobin. So we went through the structure and functioning of hemoglobin and myoglobin. Now today we are going to discuss the role of alkali and alkaline earth metal in biological systems. So only four alkali and alkaline earth metals they are important in biological system, which are sodium, potassium, magnesium, and calcium. And sodium is very important in a nerve functioning in animals, and it is a major cation of extracellular fluids in animals. Now, when looking at the potassium, role of potassium, potassium is essential to all organisms with the possible exception of blue-green algae. And this is a major cation in intracellular fluid in animals. So, sodium is a major cation in extracellular fluid, while potassium is the major cation in the intracellular fluid in animals, which is essential for transmission of nerve impulse and cardiac functions. On looking at the role of magnesium is essential to all organisms. It is present in all chlorophylls, and it has other electrochemical and enzyme activated functions. It is also essential for the muscular contraction, and it is physiological activator of enzymes which utilizes ATP. So calcium, though 90% of the calcium is present in bone, it is it also performs a number of important functions and is essential for the contraction of muscles. So it plays a role of active center in a number of protein and enzymes. So we will discuss the role of all these metal ions one by one. So आपको पता है कि जो है व्हेन वी टॉक अबाउट एल्कलीन अर्थ मेटल, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. सोडियम क्या है? नर्वस सिस्टम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. पोटेशियम जो है आपको जैसे मैंने बताया कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का एक इम्पॉर्टेंट कैटायन है. और जो है पोटेशियम सभी में ना, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी सभी एनिमल्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट एलिमेंट है, जो कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड का एक मेजर कैटायन है इन ऑल द एनिमल्स. और ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए और कार्डिक फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. जब हम मैग्नीशियम के रोल की बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो है सारे क्रिएचर्स के लिए बहुत आवश्यक होता है, और एक एडल्ट के शरीर में लगभग 20 ग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है ना, जिसमें कि लगभग आधा तो बोन्स में और आधा सेल्स में पाया जाता है. और आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है ना, और एंजाइम एक्टिवेशन में जो है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सो ये एक एंजाइम के फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के रूप में कार्य करता है, जो कि एटीपी का उपयोग करता है और मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत आवश्यक होता है. तो यद्यपि सभी एनिमल्स में पाए जाने वाला 90% कैल्शियम जो है बोन्स में पाया जाता है, इवन देन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसकी उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है, और ये प्रोटीन और एंजाइम्स में एक्टिवेटिंग सेंटर का काम करता है ना. तो here we are going to discuss the role of these metal ion in biological system. Now we come to calcium in biosystem. So mobilization and deposition of calcium in biological system is controlled by parathyroid hormone, vitamin D, and calcitriol and calcium is this osteocalcium. Calcium is usually stored in the tissues as granules, and they can be mobilized for shell formation.
कैल्शियम जो है इट इज़ स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन ऑन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, especially calsequestrin, and its molecular weight is 3300, and it has a such high affinity for calcium that it binds about 43 calcium ions per molecule, right? The contraction of molecule is associated with the release of calcium ion from the cytoplasmic reticulum and binding of calcium ion to different sites on the muscle fibers. And you see that a number of calcium binding proteins they are found in muscles. So कैल्शियम की जब when we talk about the role of calcium, तो what we find is that कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो है कैल्शियम का जो स्टोरेज है और उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी एंड कैल्सिक्वेस्ट्रिन, कैल्सिटोरिन एंड ऑस्टियोकैल्शियम के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। और कैल्शियम जो है वो जनरली टिश्यूज़ में ग्रैन्यूल्स के रूप में जमा रहते हैं, जिनका उपयोग जो है जब भी आवश्यकता पड़ती है तब कर लिया जाता है। कैल्शियम आयन जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स विशेष रूप से जिसका हम जिक्र करते हैं कैल्सिक्यूट्रिन पर जमा होता है। तो और इसका मॉलिक्यूलर वेट जैसा कि मैंने आपको बताया 3300 होता है, और इसकी जो है एफिनिटी कैल्शियम के लिए बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक कि यह जो है लगभग 43 कैल्शियम आयन पर मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने पे साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन मुक्त हो जाता है और उसके बाद मसल्स के डिफरेंट टिश्यूज़ पे जमा हो जाता है। मसल्स में बड़ी संख्या में कैल्शियम को बांधने वाली प्रोटीन पाई जाती है। जब एम्फीबियंस की बात करते हैं, फिशेस की बात करते हैं, तो यह जो है पार्वल्बिन से रिएक्ट करता है और कैल्शियम को जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं हम उनको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वी टॉक अबाउट दी ट्रोपोनिन। सो ट्रोपोनिन जो है इट इज़ अ सेंट्रल रेगुलेटरी प्रोटीन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन हाई वर्टिब्रेट्स, and it comprises of 3 different components, that is troponin 1, troponin T and troponin C, of which the last one, that is the troponin C, binds 4 calcium ion. Troponin C जो है it consists of 158 amino acid residues and its molecular weight is 18,000. And binding of calcium by troponin C removes the inhibiting action of troponin on actin filament. So here कैल्शियम आयन जो है इट फंक्शंस एज अ डिप्रेसर। नाउ वी कम टू पार्वल्ब्यूमिन। दिस कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन अकर्स इन लोअर वर्टिब्रेट्स एंड कंसिस्ट ऑफ 103 amino acid residues and binds 2 calcium ion. It consists of 103 amino acid residues and binds 2 calcium ions, and molecular weight is found to be 12,000. So parvalbumin of similar sizes and properties, they can be isolated from the muscles of chicken, turkey and rabbit. Now we come to calmodulin. Calmodulin जो है it is an important calcium binding protein which mediates the function of calcium ion in eukaryotes, and it closely resembles troponin C. Okay. In fact bovine calmodulin जो है it consists of 148 amino acids residues. Okay, and it substitutes for troponin C, activating muscle ectomycin ATPase. तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ट्रोपोनिन है एक तो जो कि हायर वर्टिब्रेट्स में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने वाला प्रोटीन है, जिसके कि 3 पार्ट्स होते हैं ना, ट्रोपोनिन 1, ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन C. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें से ट्रोपोनिन C है एक बार में 4 कैल्शियम आयन से जुड़ा हुआ होता है एंड इसमें 158 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और मॉलिक्यूलर वेट है 18,000 होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्वल्ब्यूमिन, तो पार्वल्ब्यूमिन जो है यह दिस काइंड ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन
फिशेस एंड एम्फीबियंस उनकी मसल्स में पाया जाता है। एंड इट हैज़ 103 अमीनो एसिड्स और 2 कैल्शियम आयंस दे आर बाउंड पर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर वेट है इसका 12,000, ठीक है। एंड मैंने बताया था आपको कि समान आकार और गुणों के आधार पे इसको टर्की में, चूज़ों में और रैबिट्स की मसल से उसको आइसोलेट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज़ कैल्मिडुलिन। कैल्मिडुलिन जो है अगेन इट इज़ अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन और यूकैरियोट्स में जो है ये कैल्शियम आयन के कार्य में जो है एक मीडिएटर की तरह से काम करता है। एंड स्ट्रक्चरली इट इज़ सिमिलर टू ट्रोपोनिन सी। तो वास्तव में जो बोवाइन कैल्मिडुलिन है जो कि 148 अमीनो एसिड से बनता है, ट्रोपोनिन सी को मसल्स को एक्टिवेट करने वाले एक्टोमाइसिन एटीपीएस से सब्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट इज एज आई टोल्ड यू स्टेफाइलोकोक्कियल न्यूक्लियस। तो स्टेफाइलोकोक्कियल न्यूक्लियस जो है, दिस प्रोटीन कंटेन्स 140 अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज and it shows hydrolytic activity towards both DNA and RNA, and its enzymatic activity depends upon the presence of calcium and irrespective of whether DNA or RNA is hydrolyzed or not. So calcium ion is the ion which is also required for binding of inhibitors to the active sites of the enzyme, and the enzyme binds a single calcium ion and provides a roughly octahedral geometry. So calcium ion जो है it stabilizes the appropriate conformation of the protein in which it is catalytically most reactive. And calcium ion जो है it also favors the binding of the substrate to the enzyme during the hydrolysis of polynucleotides. Next is concavalin. Concavalin A. It has a molecular weight of 25,200 and it exists as a dimer. So this protein binds both calcium and manganese ion, which are important for sugar binding. And then we come to thermolysin. Thermolysin जो है it is another calcium binding protein which is thermally stable and it has a molecular weight of about 37,500 and it contains both calcium and zinc ions. So catalytic activity of this protein is not very much dependent upon the number of these metals, which are however essential for maintaining the quaternary structure of the enzymes. So here we come again. स्टेफाइलोकोक्कियल न्यूक्लियस जो है इस प्रोटीन में 149 अमीनो एसिड्स होते हैं और डीएनए और आरएनए के हाइड्रोलिसिस में काम आते हैं और इनकी जो एक्टिविटी है वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस पे निर्भर करती है, चाहे आरएनए का हाइड्रोलिसिस हो या डीएनए का। कैल्शियम आयन जो है कैल्शियम आयन सबस्ट्रेट जो है बाइंडिंग के लिए आवश्यक होता है और एक प्रोटीन में एक कैल्शियम आयन पाया जाता है जो कि ऑक्टाहेड्रली जो है सराउंडेड होता है, ठीक है। एंड कैल्शियम आयन जो है ये प्रोटीन को जो है एक एप्रोप्रिएट कन्फॉर्मेशन में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के हाइड्रोलिसिस के दौरान स्थायित्व प्रदान करता है। कैल्शियम आयन जो है ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट के बंधन को हाइड्रोलिसिस के समय में कोऑपरेट करता है, सहयोग करता है। जब हम बात करते हैं कॉन्केवेलिन ए की, जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट जो है 25,200 है, इसका जो अस्तित्व है वो एक डाइमर की तरह से होता है और यह प्रोटीन दोनों मेटल आयन कौन से कैल्शियम और मैग्नीज आयन इसके साथ बंधित होता है। स्पेशली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शुगर बाइंडिंग। नाउ वी कम टू थर्मोलाइसिन। थर्मोलाइसिन जो है यह एक तरह का कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि थर्मली स्टेबल है और मॉलिक्यूलर वेट इसका है 37,500। इसमें कैल्शियम और जिंक दोनों तरह के मेटल आयंस पाए जाते हैं
और इसकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है वह इन मेटल आयंस की यानी कि कैल्शियम एंड जिंक मेटल आयंस की संख्या पे निर्भर नहीं करती, फिर भी इनकी आवश्यकता जो है वो एंजाइम की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सम ऑफ द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन. नाउ वी कम टू द कैल्शियम के क्या फंक्शंस क्या हैं. तो कैल्शियम का एक तो है कि कैल्सिफिकेशन ही है ना. कैल्शियम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है ना, शरीर की संरचना को आधार प्रदान करना है ना. तो जो भी लोअर एनिमल्स हैं, प्रोटोजोन से लेके मॉलस्क तक, इसमें तो ये इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में. जबकि वर्टिब्रेट्स यानी कि हायर एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि बोन्स जो हैं वो मेनली एपेटाइट की बनी हुई होती हैं है ना. तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो बोन्स और दांत दोनों का एक मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. और हाइड्रोक्सी समूह की फ्लोराइड आयन द्वारा जो है पार्शियल सब्स्टिट्यूशन में फ्लोराइड एपेटाइट का निर्माण होता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों की फर्मेंटेशन से बनने वाले अम्ल से है ना दांतों की रक्षा करता है, एनेमल की रक्षा करता है. और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जैसे कि हम बोन्स है, शेल है मॉलस्क में इत्यादि के निर्माण के लिए कैल्शियम का जमाव जो है कोशिकाओं के बाहर होता है. तो कोशिकाओं के अंदर तथा बाहर है ना अननेसेसरी प्लेसेस पे कैल्शियम का जमाव होने से क्या है, जो किडनी स्टोन्स बनते हैं, अर्थराइटिस हो जाता है घुटनों की, आपने सुना होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है ना. और अदर काइंड ऑफ आर्ट्रियल जो है डिफेक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं. So this is so important. It has a very significant role in biological system. Another role is in blood clotting. ना खून का थक्का बनना. जब भी कोई टिश्यू जो डैमेज होता है तो रक्त का प्रभाव जो है वो क्लॉटिंग ब्लड क्लॉट होने की वजह से रुक जाता है. अब क्लॉट बनने की जो प्रक्रिया है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर यहाँ पे भी कैल्शियम आयन की उपस्थिति अत्यधिक आवश्यक है. और कई सिक्रीशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम है ना. जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स की एक्टिविटी है जो कि हार्मोन्स, एंजाइम्स और दूसरे सिक्रेटरी केमिकल्स का जो है वो सिक्रेट करती हैं. तो यहाँ पे उनके एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है. जैसे कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड के लिए, पेनक्रियाज के लिए है ना, जो इंसुलिन का जो एमिशन होता है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो इस तरह से जो है कैल्शियम हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन various biological activities. So this was all about calcium. See you in the next lecture. Till then, goodbye.